everyone, welcome back to the Global Channel. I hope you all are doing well. So today we're going to start with a new topic, local winds. Okay, so we have two types, warm and cold winds. So let's start with this fresh topic. I hope you'll enjoy this topic. So let's start with warm winds. Warm winds. The biggest example of warm winds we can experience in India, that is Loo. In summers we say I don't want to go outside because loo chal rahi hai. It is very dusty plus warm plus dry winds. And where it blows in the region of Pakistan, Rajasthan, Haryana, Punjab, UP, and it goes till Assam. बहुत ज़्यादा ड्राई विंड्स होती है and it also causes health issues like heat stroke हो जाता है, बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाती है. Therefore जो हमारी गवर्नमेंट है वो कुछ गाइडलाइंस रिलीज करती है कि फॉर एग्जांपल 12 to 4 o'clock in PM stay in your houses. If there is emergency then only come out, but still for 4 hours it's impossible to stay at home, especially for our workers. Next we can see is Chinook. Chinook is also known as snow eater. And it blows in USA. What happens here, not only in USA, but we can say in North America. At the leeward side of Rockies Mountain. Rockies, this is known as the windward side. And this is known as leeward side. What happens? कि जब हमारे पास यहाँ पे स्नो होती है एंड ये जो ड्राई एंड वार्म विंड यहाँ से नीचे की तरफ ऐसे डिसेंड करती है, नीचे की तरफ जाती है, तो ये स्नो को खाती हुई जाती, ईट करती जाती है, मीन्स इट मेल्ट्स द स्नो. देयरफॉर इट इज नोन एज स्नो ईटर. नेक्स्ट वी हैव टू do the next wind is Sirocco winds. Sirocco. Now what happens in this? These are also dry, dusty, stormy, violent winds जो हमारे पास अफ्रीका में चलती है. Okay. This is also known as doctor's wind. Why it is known as doctor's wind? This is Africa. Very small I have made this. तो ये सहारा डेजर्ट से ऐसे ओरिजिनेट करती है. इसकी एक स्पेसिफिक टाइप है सिरोको की, दैट इज हरमटन. This is known as doctor's wind. All over we can say that Sirocco is also known as doctor's wind. So what happens कि ये यहाँ से जब सहारा डेजर्ट से चलती है towards साउथ वेस्टर्न रीजन, towards गल्फ ऑफ गिनी, तो यहाँ पे ये थोड़ा सा रिलीफ प्रोवाइड करती है फ्रॉम वार्म एंड ड्राई कंडीशंस को. एंड यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनको थोड़ा सा जब रिलीफ मिलता है, सो देन दे सेज कि दीज विंड्स आर डॉक्टर्स विंड. ओके. अब इसका एक और प्रॉपर्टी है कि जब ये विंड्स चलती है एंड यहाँ से सहारा डेजर्ट से चलती है,
इसके पास कुछ व्हाट कॉल सैंड के पार्टिकल्स ये इकट्ठे करती है, एंड व्हेन इट क्रॉसेस मेडिटेरेनियन सी एंड एंटर्स इन यूरोप, स्पेसिफिकली इन इटली साइड, तो यहाँ पे जब ये रेन कॉज करती है, दैट रेन इज नोन एज ब्लड रेन। वाई इट इज नोन एज ब्लड रेन? क्योंकि जो ये सहारा डेजर्ट से जो सैंड के पार्टिकल्स को उठाती है एंड इट carries to the sand particle with itself and crosses the Mediterranean Sea, तो जो ये सैंड के पार्टिकल्स इसने सहारा डेजर्ट से उठाए हैं, दैट आर रेड पार्टिकल्स, therefore blood's color is red, therefore it is known as blood rains, and these rains are very harmful for citrus fruits like grapes. Okay, next we have some more. For example, Yoma winds. These winds blow in Japan. ये जितने भी winds we are doing, इनके मोस्टली एक इम्पैक्ट होता है कि टेम्परेचर इंक्रीज कर देती है, हेल्थ इश्यूज इंक्रीज होते हैं, these type of impacts they leave. Okay. Next we have Fohn. ये हमारी चलती है एल्प्स में, यूरोप में भी हमारे पास, इट्स नॉट लाइक दिस कि यूरोप अपर लैटिट्यूड में तो वो ठंडा रीजन हो, वहां पे भी गर्म हवाएं चलती हैं. नेक्स्ट वी हैव टू डू, दीज आर सम ऑफ द वार्म विंड्स. नाउ विल बी डूइंग कोल्ड विंड्स. Cold winds. Okay, so cold winds, the first wind is blizzard. अब ये जो winds है, these originate from the Arctic Circle. Arctic Circle से ये originate करती हैं, and when it comes towards southern side, यहाँ पे, so this is America, North America. Like this. So what will happen कि जब ये यहां से आएगी, यहाँ पे हमारे पास रॉकीज है, तो रॉकीज की अलाइनमेंट है, इनका जो स्ट्रक्चर है, दिस इज वर्टिकल नॉट हॉरिजॉन्टल. देयरफॉर जो हमारा रॉकीज है, ये इन विंड्स को यहाँ पे लाइक जैसे हमारा हिमालयाज है वो ऐसे है, तो जो ऊपर अपर साइड से जो कोल्ड विंड्स आती है उनको हिमालयाज रोक लेता है, एंड इट डज नॉट अलाउ दोज कोल्ड विंड्स टू कम इन इंडिया. देयरफॉर जो हमारा रॉकीज है ये इसको नहीं रोक पाता, देयरफॉर जो ये विंड्स है ये नीचे तक पहुंच जाती हैं, एंड लाइक यहां तक यू कैन से टिल टेक्सास. ठीक है, एंड हियर वी कैन से दीज आर नोन एज नॉर्दर्स. और जब ये फर्दर सेंट्रल अमेरिका तक पहुंच जाती है, देन दे आर नोन एज एल नॉर्डिक. ओके, तो यहाँ पे क्या होगा कि दिस इज कनाडा, दिस इज यूएसए, तो यहाँ पे ये बहुत ज्यादा लाइक आइस स्टॉर्म्स या स्नो स्टॉर्म्स या स्नो बॉम्ब्स करके हम टर्म्स यूज करते हैं. तो यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंडी हवा, कोल्ड विंड्स होंगी, स्नोफॉल होगा, स्नो स्टॉर्म होगा. तो इससे क्या होगा कि इट विल डिक्रीज द टेम्परेचर, विजिबिलिटी विल डिक्रीज. ठीक है, ये भी बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज कॉज करते हैं. अपर रीजन में दे कैन कॉज परमाफ्रॉस्ट कंडीशंस. अगर आप ज्यादा देर बाहर रहते हैं तो बहुत ज्यादा होता है कि स्नो के इम्पैक्ट्स होते हैं. ओके,
One of the warm wind which I have forgot to tell you is Santa Ana. Santa Ana is a valley in the US. तो ये यहाँ से आती है एंड बहुत ज्यादा वायलेंट होती है, इतनी डिस्ट्रक्टिव होती है कि इट लीड्स टू फॉरेस्ट फायर्स. It leads to forest fires. Next we have cold winds में हमारे पास है बुरान. बुरान चलती है साइबेरिया में. This is similar to blizzards. Blizzards हमारी नॉर्थ अमेरिका में है एंड जो हमारी बुरान है दिस इज इन साइबेरिया रीजन. ये भी बहुत ज्यादा स्नो स्टॉर्म, बहुत ज्यादा कोल्ड टेम्परेचर, डिक्रीज्ड टेम्परेचर, परमाफ्रॉस्ट कंडीशंस बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है. वेदर इट इज warm winds or whether it is cold winds, दोनों winds impact the economy of the nation as well. So these are some of the winds which we have covered here, and I hope you like this lecture, and many other winds also which we can see. For example, cold winds में we have, I think, पुर्गा winds है हमारे पास, वो भी बहुत ज्यादा cold होती हैं. So these are some of the winds which we have covered in today's lecture. So I hope that you loved these all things which I have delivered to you. So stay tuned for the next lecture, and very soon we'll come with a very new fresh topic. So till the time, stay safe and yes, keep revising with your syllabus. Thank you very much.